Hello, my dears. Today, a very interesting chapter we are going to study, and that is at the science fair. Everybody, including teachers and students, all are very much excited when we hear the notice of the science exhibition. So, similarly, in this chapter also, we are going to study about the science fair. The science fair at Vidyavardhani school was always an exciting affair. So here the science fair of Vidyavardhani school is been described. There were a number of stalls never less than 50. So 50 stalls के ऊपर और 50 के तो कम बिल्कुल नहीं, उतने stalls रहते थे. Entertainment booths and of course refreshments. Entertainment booths भी रहता था, games वाले and refreshments, coffee, tea, some snacks. There were two basic rules. One, everything should be handled by students, and two, everything, even the entertainment booths and refreshment stalls, had to have a scientific base. So there were only two rules. First, सब बच्चे लोग ही हैंडल करना चाहिए, एंड सेकेंड, एंटरटेनमेंट बूथ्स एंड रिफ्रेशमेंट्स का भी साइंटिफिक बेस होना चाहिए. इट शुड बी रिलेटेड टू साइंस. Preparations for the fair began at least a couple of months in advance. Now of course, fair कल है तो आज हम लोग तैयारी करेंगे क्या? No. So it was well in advance. The first step was brainstorming. Brainstorming means सब जगह से ideas कुछ आएंगे and उससे हम लोग एक main topic start करेंगे. The principal invited ideas for the event from students, teachers and even parents. A host of ideas poured in. बहुत सारे ideas आने लगे. Luckily, many parents not only contributed ideas but also volunteered to help with the planning and implementation of the big event. सब लोग अपना अपना ideas दे रहे थे. Parents ने बोला कि हम लोग भी मदद करेंगे planning में और वो program को कैसे success बनाना है. So a committee of parents and teachers was set up to look after all the work of the fair. तो इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया था, स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया था, टीचर्स भी थे. Some student representatives were also taken on the committee to give them a first-hand experience of managing big programs like this. So students were also invited, they were also selected. उनको भी बता के दिया था कि उनको भी एक एक्सपीरियंस कैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स कंडक्ट करना चाहिए. The committee identified certain themes for the fair. So certain topics. They were plants, animals, properties of substances, energy, forms of energy and energy resource, science in our everyday life, latest news from the world of science and food and nutrition. तो ये सारे topics दिए थे. Considering the area of the school playground and the estimated turnout, it was decided to allow 56 stalls in the fair. So पहले उन्होंने एरिया देखा, कितना स्टॉल्स बैठ सकते हैं, कितना स्टॉल्स इरेक्ट हो सकते हैं, एंड देन इट वॉज डिसाइडेड दैट 56 स्टॉल्स हो सकते हैं. द स्टॉल्स वर अलॉटेड टू एज मेनी ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन. बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया था. ईच ग्रुप सेलेक्टेड अ टॉपिक और आइडिया फ्रॉम द चोजन थीम्स. सो फ्रॉम द थीम्स द टीम्स सेलेक्टेड देयर थीम्स. द कमिटी हैड टू मेक श्योर दैट द टॉपिक्स वर नॉट रिपीटेड. सो कमेटी को ये देखना था कि हर एक क्लास और हर एक ग्रुप अलग अलग टॉपिक्स में ही साइंस एग्जिबिशन करें, अलग अलग टॉपिक्स होना चाहिए. यस चिल्ड्रन, सो व्हेन यू आर रीडिंग दिस चैप्टर और व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, यू विल ऑल रिमेंबर आवर साइंस एग्जिबिशन डेज. सो हाउ एक्साइटेड यू वुड बी, व्हाट ऑल प्रेपरेशंस यू डू, क्या क्या करते थे आप, राइट? The young scientists began their work in earnest at the earliest. They began by collecting a lot of information about their topic using their science textbook, their school library and also the internet. So they used textbook, then they took help from some books from the school library, then also the internet. They shared and discussed this information in their groups. So whatever the news or whatever topic they used to collect, they used to discuss it. The next step was to decide the exact activity for the stall.
टॉपिक्स ढूंढ लिया, इन्फॉर्मेशन ढूंढ लिया, अभी क्या करना है, एग्जैक्टली स्टॉल में कैसे एग्जिबिट करना है, कैसे बताना है. वेदर दे शुड बिल्ड एंड डिस्प्ले अ मॉडल बनाना है, और गिव अ डेमॉन्स्ट्रेशन या डेमो बता के देना है, राइट. और प्रेजेंट दैट प्रोजेक्ट थ्रू पोस्टर्स, या फिर पोस्टर्स करके वो दिखाना है, और सिंपली एग्जिबिट अ कलेक्शन, या बहुत सारे चीज़ें ऐसे रख के बताना है कि यही है हमारा साइंस टॉपिक. द प्रिंसिपल announced that the language, appearance and the content of the presentations were all important. So प्रिंसिपल ने बोला साइंस टॉपिक्स के साथ साथ द वे यू स्पीक, द वे यू आर ड्रेस्ड, all are important. The language teachers help the young stall holders to make the graphic and oral presentations more effective. So the language teachers, so they help the students in preparing their speech, small speech type, in order to get good response. So graphic presentations. So graphic presentation में कैसे रहेगा, कुछ दिखाना है. Just imagine if suppose you are holding some stall, you are having some stall, so how are you going to exhibit it, how are you going to show it to the audience, to the people coming and visiting your stall. Graphic presentation, right to the point so that a visitor may read a chart or poster at a glance. So जो भी आपको लिखना है वो to the point लिखो, घुमा फिरा के मत लिखो, ताकि जो कोई आपके यहाँ देखने आ रहा है वो तुरंत वो चार्ट को देखेंगे और उसको समझ जाएगा. मेक यूज़ ऑफ बुलेट पॉइंट्स और बुलेटेड लिस्ट, ये जैसे बुलेट पॉइंट्स है, सर्कल सर्कल सर्कल, वैसे यूज़ करो. यूज़ पिक्चर्स एंड डायग्राम्स एंड लेबल देम. सो जो कोई आपका प्लांट्स का अगर टॉपिक है, सो प्लांट्स को ड्रॉ करो और उसको लेबल करो. यूज़ पिक्टोग्राम्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एक्सेट्रा टू शो न्यूमेरिकल डेटा. अभी नंबर्स का कुछ डेटा है 1 2 3, तो वैसे आप पाई चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं. Plan all your posters, charts properly before you start making them. So बनाने से पहले properly plan कर लो, otherwise mistakes हो सकता है. Make a rough mini copy before you begin work on the big final poster or chart. So final बनाने से पहले rough copy ज़रूर बना के लो to avoid mistakes. Correct. Don't forget to check your spellings, sentences or other errors in the mini copy itself. So mini copy में जो बनाया है उसी को 10 बार चेक कर लो. So if at all there are any mistakes, you can rectify it. Use different colors to highlight important features, but use them judicially. अलग अलग कलर्स हाईलाइट करके यूज़ कर सकते हैं, बट एक ही साथ सब एक साथ कलर करेंगे तो ख़राब दिखेगा. If you have used any text, picture, diagrams etc. from elsewhere, acknowledge the source. For example, if you have taken from Google or from other site, so you should mention those sites. So this was related to graphic presentation. Now oral presentation, आपके पास कोई आया है और आपको कुछ बोलना है मुंह से, तो आप कैसे करोगे? The oral presentations or speeches should be short and to the point, 2 to 3 minutes at the most. So आप जो अगर बात कर रहे हैं अपने मॉडल के बारे में, so ज़्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए. It should be short, sweet, simple, minimum 2 to 3 minutes. They should be directly related to the model, demonstration or specimens exhibited in the stall. Directly आप आपका मॉडल के बारे में बात करोगे. Be confident when you make a presentation. एकदम डर डर के बात नहीं करना चाहिए. सो अगर घर से आप लोग रिहर्सल करके आओगे, सो इफ़ यू वांट टू स्पीक, सो इफ़ यू ट्राई प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू विल बी एबल टू से प्रॉपरली. रिहर्स द स्पीच वेल, घर से प्रॉपरली रिहर्स करके आओ. बी रेडी टू आंसर रिलेवेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस डूइंग दैट विथ योर फ्रेंड्स. सो जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके टॉपिक के ऊपर, आपको आंसर्स आना चाहिए. सो ये सब आप आपके फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए. Make use of the visuals or graphics in the stall. Put point to the relevant parts when you speak. So आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के बारे में कुछ टॉपिक है, प्लांट्स के बारे में बोल रहे हैं, तो आपका चार्ट में भी वैसे वैसे हाथ दिखा के जाना चाहिए.
like this, she is showing this, see, right? Wear clean and tidy clothes but do not dress up to show off. क्लीन ड्रेस पहनो, नीट एंड टाइडी रहना चाहिए, पर स्टाइल मारना नहीं है. बी पोलाइट, बी प्लेजेंट when you talk to the visitors. If you don't know the answer to a question, say so, but later on try to find the answer. So if anybody is coming and asking you some questions which you are not knowing, so you should directly say, sorry sir, I am not knowing the answer, but I will definitely try to find out the answer. ऐसे कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलना नहीं चाहिए, अच्छे से बता के देना चाहिए कि पता नहीं है मुझे, मैं ढूंढ के बराबर से वापस चेक कर लेता हूँ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्माइल. सो यू शुड ऑलवेज स्माइल एंड वेलकम, नॉट लाफ, हा हा हा. अपने ही इसमें नहीं रहना चाहिए कि कोई आया और आप लोगों को पता भी नहीं चला कि आपके स्टॉल में कौन आ रहा है. यू शुड बी वेरी मच अटेंटिव. यस. नेक्स्ट, at last the big day arrived. Which day? The fair's day. The fair was inaugurated by the oldest science teacher, Mr. Gizre. So ये इसको inaugurate किसने किया, इसको ribbon किसने काटा? Mr. Gizre. Now who is Mr. Gizre? It was Mr. Gizre who had come up with the idea of a science fair some 25 years ago. So इन्होंने ही ये science fair को स्टार्ट किया, इनका ही आइडिया है. कितने साल पहले? 25 years ago. Initially it was meant for just one class, but the idea had become so popular that now the entire school participated in it. पहले सिर्फ एक ही क्लास पार्टिसिपेट करता था, एक ही क्लास करता था, बट स्लोली जब सब बच्चों को पता चला कितना इंटरेस्टिंग है, हाउ फन इट इज़ टू टेक पार्ट, देन everybody tried taking part in that. Mr. Gizre explained the importance of using the scientific method to find the answers to the questions relating to the physical world around us. तो मिस्टर गिजरे ने बोला कि हम लोग जो भी आसपास देखते हैं, we should always ask questions. He was happy to see the stalls, especially the ones that showed simple methods on identifying food adulteration. तो उन्होंने सब स्टॉल्स देखे और उनमें से उनको सबसे अच्छा क्या लगा? फूड अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन इज़ द मिक्सिंग. कोई कोई लोग मिक्सिंग करते हैं सामानों में, खाना की चीज़ों में. He appreciated the fact that in most of the stalls, visitor could also try out the various science experiments and models. So सामने जो भी आ रहे थे विजिटर्स, उन लोग एक्चुअल में ट्राई भी कर सकते थे जो भी साइंस के मॉडल्स है. सो इससे और उनको इंटरेस्ट आएगा जो आ रहे हैं देखने. He gave a special pat on the back to the clean brigade. Clean brigade means some students were allotted to take care of the cleanliness. So they used certain things and kept the area clean. The brigade members made rounds on the fair, spreading the message of cleanliness. But that was not all. They had vowed to keep the school premises spick and span during the fair, though they expected more than 1,000 visitors and half as many stall holders. They were a disciplined lot. So क्लीन ब्रिगेड हर एक के स्टॉल के आसपास जाके बोल रहे थे कि कचरा मत करो. देन उन लोग क्लीन कर रहे थे और उन्होंने देखा कि सब क्लीन है, स्पिक एंड स्पैन है. बट वॉट विथ सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स गोइंग ऑन, इट वॉज बाउंड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ लिटर. बट हम लोग भले वो क्लीन ब्रिगेड बोल रहे थे कि कचरा मत करो, बट इतना सारा एक्टिविटी हो रहा था. सो किसी का पानी गिर जाता था, किसी का कुछ और सामान गिर जाता था, राइट? So you must also have experienced these all things. They were well equipped with garbage cans, scoops, brooms and wipes. But उनके पास सब सामान थे. Garbage cans थे, then scoops थे जिसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं, dust pan, then brooms झाड़ू थे, and wipes थे जिससे कपड़ा, जिससे कुछ गिर गया तो साफ कर सकते हैं. सो दिस क्लीन ब्रिगेड वॉज वेरी मच इक्विप्ड. उनके पास ये सारा चीज़ें थे. Now what all experiments or what all things the children were doing? Let us also take a round of the fair to see some of the highlights. The 6th standard children were handling the following stalls. तो ये सब stalls उनमें था. Use of kinetic energy. Yes, the stall displayed the model of a water mill. So ये kinetic energy के बारे में था. Then potential energy, plastic bottle, motor boat. Then sound, कैसे ये दो लोग बात कर रहे हैं देखो.
So everyone enjoyed making simple string telephones at the stall and then using them. So वो जो भी visitors आते थे वो actual में try कर सकते थे. Then electrostatic energy. This stall was also so popular that additional help was needed to blow balloons as quickly as they were used up. हाहा, इतना ये इधर स्टॉल में पब्लिक आने लगे कि दूसरे लोगों को बुलाना पड़ा बलून फुलाने में. ये आप लोगों ने भी किया रहेगा. स्केल को सर में, जब बाल में तेल है वो अगर हम रब करेंगे एंड पेपर्स के ऊपर रखेंगे तो वो पेपर्स ऊपर आते हैं. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. देन फूड अडल्ट्रेशन. Even the parents learned something at the stall. Food adulteration means mixing. कोई लोग दूध में पानी मिलाते हैं, मिर्ची पाउडर के अंदर ब्रिक पाउडर डालते हैं. यस, तो ये सब मिक्सिंग है. सो वो सब बैड है हेल्थ के लिए. Then fun with magnets. Visitors queued up to see the different types of magnets at work. Magnets का क्या क्या यूज़ है, उसके हम क्या क्या फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो वो ये स्टॉल में दिखा रहे थे. देन मेंटेनिंग मशीन्स. जो भी मशीन्स है उसको हम प्रॉपरली मेंटेन करके रखना चाहिए. सो इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग इट दे विल गेट रिपेयर्ड. इमीडिएटली फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. Some of the visitors made video clips of the presentation at the stall. So normally what happens, जो भी parents आते हैं और किसी को कुछ अच्छा लगा स्टॉल का तो they used to take videos. It consisted of different children playing the roles of different machines, all crying out turn by turn, "Hey, we too need your attention. We can serve you well only if you take care of us." तो यहाँ पे थोड़े बच्चे लोग मशीन्स के पोस्टर्स लगाए थे और उन लोग बोल रहे थे अगर हम लोग मशीन्स हैं एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस प्रॉपरली वी विल नॉट बी इन यूज़. हम लोग आपके कुछ यूज़ के नहीं हैं. सो इवन इफ़ वी हैव अ स्मॉल मशीन वी शुड टेक केयर ऑफ इट. द फेयर वॉज सच अ ह्यूज सक्सेस दैट द स्कूल हैड टू रन इट फॉर 3 days इंस्टेड ऑफ 2. वाओ, इतने सारे पब्लिक आने लगे. सब लोग ने बोला कि एक और दिन रखो प्लीज़, तो इसीलिए 2 दिन की जगह पे 3 दिन रखा. द प्रिंसिपल अलाउड दिस चेंज इन द टाइम टेबल ओनली बिकॉज इट वॉज ट्रूली अ एजुकेशनल एक्टिविटी. तो प्रिंसिपल ने भी ओके बोल दिया बिकॉज सब एजुकेशनल एक्टिविटी था. नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रेन बट ऑल्सो फॉर देयर फैमिली एंड द एंटायर कम्युनिटी. सिर्फ चिल्ड्रन के लिए एजुकेशनल एक्टिविटी नहीं था बट सबके लिए था. No wonder everyone is already looking forward to the next year's fair. इसीलिए सब लोग अभी सोच रहे हैं कि ओह नेक्स्ट ईयर क्या होएगा, अगले साल क्या होएगा. Now see the scientific method. हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व वॉट इज़ अराउंड यू. आसपास जो भी चीज़ है वो देखना चाहिए. देन यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस. अगर आपको कुछ लग रहा है ये ऐसा क्यों है, मन ही मन में नहीं रखो. यू शुड आस्क क्वेश्चंस पूछो. वाई नॉट, हाउ, ये ऐसा क्यों है. अभी मैग्नेट्स क्यों फ्रिज में स्टिक होते हैं, बाकी कोई जगह पे ज़मीन पे क्यों नहीं स्टिक होते हैं. वाई डज अ फ्रिज मैग्नेट स्टिक टू द फ्रिज डोर बट नॉट टू द किचन प्लेटफॉर्म. क्यों उधर ही स्टिक होता है. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस इन द साइंटिफिक मेथड. सो कुछ आपने अगर सोचा तो उसको थियरी बोलते हैं. दैट इज़ हाइपोथेसिस. मे बी इट हैज़ सम स्पेशल पावर्स. फिर हमें समझ में आता है जब सोचने के बाद कि मैग्नेट क्यों फ्रिज में ही चिपकता है, फिर हमको कुछ समझता है कि हाँ मैग्नेट माइट हैव सम डिफरेंट पावर्स. सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू ट्राई आउट योर हाइपोथेसिस. जो आपने सोचा है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करो. सो आई विल ट्राई टू स्टिक इट टू डिफरेंट थिंग्स, वॉल, टाइल, पोटैटो, वुडन टेबल, पॉट्स एंड पैन्स, प्लास्टिक बॉटल, कप. तो इसमें सब में मैं ट्राई करके रखूँगी मैग्नेट स्टिक होता है क्या. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन डिटेल. दिस इज़ योर डेटा. सो आपने क्या देखा, मैग्नेट्स किस किस चीज़ों में स्टिक होता है, तो दिस इज़ योर डेटा. द मैग्नेट स्टिक्स टू सम सर्फेसेस बट नॉट टू अदर. कोई सरफेस में स्टिक होता है बट सारों में नहीं होता है. देन ड्रॉ कंक्लूजन्स. डू दे मैच योर हाइपोथेसिस. इफ़ येस वाई, इफ़ नॉट वाई नॉट. देन सोचो कि ओ क्या चीज़ है ऐसे, क्या है ऐसे मैग्नेट में कि वो कुछ चीज़ों में स्टिक होता है और कुछ चीज़ों में नहीं. इट सीम्स एज इफ सम मेटल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट
दे आर मेड ऑफ आयरन और स्टील। फिर समझ आया, ओ मैग्नेट ऐसी चीज़ों में चिपकता है जो आयरन से बना है या स्टील से बना है। राइट डाउन योर फाइंडिंग्स एंड शेयर देम विद अदर्स। सो आपको क्या समझा है वो आपको लिखना है। आपको क्या समझा है? मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन बट नॉट ऑल सब्सटेंसेस, नॉट इवन ऑल मेटल्स। तो लास्ट में हमको क्या समझा है कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए आयरन खिंच जाता है, बट सब चीज़ों को वो अट्रैक्ट नहीं करता है। सो दिस वॉज अवर चैप्टर साइंस फेयर। Yes children, so if whatever you see when you're walking, don't just keep it to yourself, always ask questions to your elders. Yes, so this was a very beautiful chapter. So while reading this chapter you might get your past memories of your science fair. This year unfortunately we couldn't do anything, yes, but next year's, yes, the coming years we will do something best. Yes children, okay, thank you.